آج ہم آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ غریب نواز کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں، جن کی تبلیغ سے تقریباً 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی جن کے عقیدت مندوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ اور عیسائی ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خواجہ صاحب کا شجرہ حضرت علی کے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین سے کیسے چلتا ہے، ان کے شجرے میں اہل بیت کے کتنے امام تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے آپ کا کیا تعلق تھا۔ ویورز، ہم وضاحت کرنے چینل خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن تھا۔ آپ سن 1136 عیسوی میں ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے کی نسبت سے آپ کو حسن سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے، مطلب آپ کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو ویورز، چلیں ہم پہلے خواجہ صاحب کی والدہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام مہنور بی بی تھا، جو کہ ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حسن یعنی خواجہ صاحب کی ولادت کا سلسلہ تھا تو میں ان کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتی۔ مہنور بی بی کے والد سید داؤد تھے، جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے سگے بھائی تھے، جن کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ یعنی خواجہ صاحب کی والدہ شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن تھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رشتے میں خواجہ صاحب کے ماموں تھے، تو یوں ان کی آپس میں رشتہ داری اور قرابت داری بھی تھی۔ سید داؤد کے والد سید عبداللہ الجیلی تھے، جو عراق کے ایک علاقے الجیل میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے کی نسبت سے ان کا نام الجیلی رکھا گیا، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا اور خواجہ صاحب کے پڑنانا تھے۔ سید عبداللہ الجیلی کے والد سید یحییٰ الزاہد تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں پہلی دفعہ حجاز کا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، چونکہ ان دنوں عباسی حکمرانوں کے اہل بیت سے تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے، تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے آبائی علاقے سے ہجرت کر کے عراق کے علاقے مادین میں آ گئے۔ سید یحییٰ کے والد سید محمد المدنی اور ان کے والد سید داؤد تھے۔ حضرت داؤد نے اپنے 9 بھائیوں اور جانشینوں کے ساتھ مل کے عباسی سلطنت سے حجاز کا پورا علاقہ آزاد کرا لیا، اور یہاں اپنی خود مختار ہاشمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ حضرت داؤد کے والد حضرت موسیٰ ابن عبداللہ تھے۔ آپ سن 835 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور جوانی کی عمر میں پہنچ کے اپنے والد حضرت عبداللہ الرضا سے بیعت اور خلافت حاصل کی، اور عباسیوں کے خلاف ہر محاذ پہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پیش رہے۔ ان کے والد عبداللہ الرضا موجودہ عراق کے شہر بصرہ میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب ان کے والد عباسیوں سے بچ کے اسی شہر میں روح پوش تھے۔ چنانچہ اس شہر میں پیدا ہونے کی نسبت سے آپ کو عبداللہ بصری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے والد حضرت موسیٰ الجون ایک لکھاری اور بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ ان کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نے انہیں الجون کا لقب دیا۔ آپ عباسی حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے پوری زندگی مدینہ میں روح پوش رہے، لیکن خلیفہ المنصور کے دور میں وہ قید ہو گئے، اور اسی قید میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ الجون کے والد حضرت عبداللہ کامل تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے مختلف بیٹوں کی نسل سے دنیا کے کئی خاندان اور ریاستیں وجود میں آئیں، جیسا کہ حضرت ادریس کی نسل سے اردن کا شاہی خاندان، محمد کی نسل سے مروکو کے ادریسی، سلیمان کی نسل سے مغرب کے سلیمانی، اور جعفر کی نسل سے تیونیسیا کے شریف تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حدیث کے ایک بہت بڑے راوی اور قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ عباسی خلیفہ المنصور نے جب لوگوں میں آپ کا اثر و رسوخ دیکھا تو آپ کو قید کر لیا، اور سن 762 میں عراق کے ہاشمی جیل میں قید کے دوران آپ کا انتقال ہوا۔ عبداللہ الکامل کے والد حضرت حسن المثنیٰ تھے۔ آپ کی پیدائش سن 661 میں مدینہ میں ہوئی۔
व्यूअर्स, ये वही साल था कि जब आपके दादा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया। इनके बारे में आता है कि ये करबला की जंग में अपने चाचा इमाम हुसैन के शाना बशाना लड़े, लेकिन फिर बाद में इन्हें कैद कर लिया गया। व्यूअर्स, कहा जाता है कि हजरत हसन अल मुसन्ना की बहुत सी औलादें थी और हजरत इमाम हसन की औलाद उनसे और उनके एक भाई हजरत जैद से चलती है। मतलब आज पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम हसनी सैयद इन्हीं दोनों भाइयों की नस्ल से हैं। हजरत हसन अल मुसन्ना के वालिद इमाम हसन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े बेटे और नवासाए रसूल थे। आपने अपनी जवानी में मुसलमानों की बदतरीन खाना जंगी देखी और इसे ख़त्म करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हज़रत अली की शहादत के बाद मुसलमानों का उन्हें खलीफा मुंतखब करने के बावजूद वो हुकूमत से दस्तबरदार हो गए और इस खाना जंगी को ख़त्म करते हुए हुकूमत बनु उमैया के हवाले कर दी। कहा जाता है कि उन्हें उनकी बीवी या किसी गुलाम ने जहर दिया था। हज़रत हसन का नस्ब अपने वालिद हज़रत अली और वालिदा हज़रत फ़ातिमा से होते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। तो चलें अब हम इमाम अली के दूसरे बेटे इमाम हुसैन से ख्वाजा साहब के वालिद तक का शजरा देखते हैं। व्यूवर्स, हज़रत हसन की शहादत के बाद हज़रत हुसैन भी हसन मुआविया मुआहदे की पासदारी करते रहे। इस मुआहदे की एक शिक ये भी थी कि हज़रत मुआविया के बाद मुसलमानों के मुश्तरका फैसले से अगला हुक्मरान मुंतखब किया जाएगा। लेकिन हालात उस वक्त ज़्यादा ख़राब होने लगे कि जब हज़रत मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामज़द कर दिया और सन 680 ईस्वी में यजीद ने तख्त पे बैठते ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बैत का मुतालबा किया, जिसका आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने साफ इनकार कर दिया। इसके नतीजे में कूफा जाते हुए हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान के 72 अफराद को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और व्यूवर्स, इन 72 अफराद पे हमला आवर होने वाली फ़ौज की तादाद कुछ मुअर्रिख 4000 जबकि कुछ दूसरे 30,000 से ज़ायद बताते हैं। अगर आपकी औलाद की बात की जाए तो आपके दो बेटे हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर करबला में शहीद हो गए, जिनमें हज़रत अली असगर एक नौमौलूद बच्चे थे। उनके तीसरे बेटे हज़रत ज़ैनुल आबदीन भी करबला में मौजूद थे, लेकिन बीमार होने की वजह से आपको जंग की इजाज़त न मिली। जंग के बाद उमवी कमांडर शिमर उन्हें भी कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन फौज के कुछ ऊंचे ओहदेदारों के मशवरे से उनकी जान बख्श दी गई। आप करबला में बच जाने वाले वाहिद हुसैनी सैयद थे और आपसे ही दुनिया के तमाम हुसैनी सैयदों की नस्ल चलती है। जहाँ तक आपकी औलाद की बात है तो आपके बेटे हज़रत जैद ने उमवियों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन उमवी उस वक्त इतने ताकतवर हो चुके थे कि हज़रत जैद इस बगावत में नाकाम रहे। उनकी शहादत ने इस्लाम के जैदिया फ़िरके को जन्म दिया, जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के बाद हज़रत जैद को पांचवा इमाम मानते हैं। जहाँ तक ख्वाजा गरीब नवाज की बात है तो उनका शजरा 12 इमामी शाख यानी हज़रत ज़ैनुल आबदीन के बड़े बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर से चलता है। इमाम बाकिर की पैदाइश मदीना में उस वक्त हुई कि जब हज़रत मुआविया अपने बेटे यजीद की जानशीनी के लिए मदीना में सरगर्म थे। करबला की जंग में उनकी उम्र महज 6 साल थी और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने ख़ानदान के बेशतर अफराद को कटते देखा। मुर्रखीन लिखते हैं कि उन्हें उमवी हुक्मरान इब्राहीम इब्न वलद ने जहर दिया था। इस शजरे में इमाम बाकिर के बाद उनके बेटे इमाम जाफर सादिक आते हैं, जो छठे इमाम होने के साथ साथ 8वीं सदी के एक मशहूर आलिम भी थे। उन्हें सुन्नियों और शिया दोनों मकतब फ़िक्र में बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। व्यूअर्स, इमाम जाफर सादिक बहुत कम अरसे में तमाम मुसलमानों में बहुत मशहूर हो गए और अब्बासी हुक्मरान ये हरगिज़ ना चाहते थे। तो कहा जाता है कि उन्हें अब्बासी खलीफा अल मंसूर के कहने पे हिरासा किया गया और फिर बाद में जहर दे दिया गया। जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो उनके कई बच्चों में सबसे अहम इस्माइल थे, जिनकी नस्ल से मुस्तकबिल के फातमी सल्तनत के खुलफा ताल्लुक़ रखते हैं। ख्वाजा साहब के शजरे में इमाम जाफर के बाद उनके बेटे इमाम मूसा अल काज़िम आते हैं, जो कि 7वें शिया इमाम थे।
व्यूअर्स, इमाम मूसा बहुत ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त और गुस्सा पी जाने वाली शख्सियत थे। इसी वजह से आपका लक़ब काज़िम यानी गुस्सा पी जाने वाला पड़ गया। आप सन 745 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और अपनी ज़िंदगी में 4 अब्बासी खुलफा का दौर देखा, जिनमें अल मंसूर, अल हादी, अल महदी और हारून अर रशीद शामिल हैं। इन खुलफा की तरफ से उन्हें वक्तन फ़वक्तन कैद में डाल दिया जाता और कई दफ़ा हिरासा भी किया गया। चुनाचे सन 799 में खलीफा हारून अर रशीद के दौर में उन्हें बगदाद के एक जेल में जहर दे दिया गया। व्यूअर्स, इस जगह इस शजरे में एक तकसीम नजर आती है, वो ये कि इमाम मूसा के बाद इमामत का सिलसिला उनके बेटे अली अल रिदा से चलता है, जो कि आगे जाके 12वें और आखिरी इमाम इमाम मेहदी पे ख़त्म होता है। जबकि ख्वाजा साहब का सिलसिला इमाम मूसा के एक दूसरे बेटे हज़रत इब्राहीम से आगे चलता है। हज़रत इब्राहीम बिन मूसा के दौर में मुसलमान चौथे फितने में मुब्तला थे और अब्बासी खलीफा हारून अर रशीद की मौत के बाद अब्बासियों की आपसी खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। इस खाना जंगी का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत इब्राहीम ने यमन में अब्बासियों के खिलाफ बगावत कर दी और फिर बाद में मक्का का कंट्रोल भी संभाल लिया। चुनाचे अगले खलीफा अल मामून ने उनसे जंग करने की बजाय उन्हें मक्का का गवर्नर तस्लीम कर लिया। व्यूअर्स, ख्वाजा साहब के अलावा इनकी नस्ल से दुनिया के बेशतर औलिया आए, जिनका जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। इनके बाद सैयद अब्दुल अजीज़, सैयद नजमुद्दीन, सैयद अहमद और सैयद कमालुद्दीन आते हैं, जिनके बारे में तारीख में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। चुनाचे हम ख्वाजा साहब के वालिद ख्वाजा गियासुद्दीन हसन पे आते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त खुरासान में गुजारा। आप अपने वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दीन और वलीउल्लाह थे, जिनका शुमार अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदों में होता था। यही वजह थी कि ख्वाजा साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पे अपने वालिद से ही हासिल की। जब ख्वाजा साहब 15 बरस के हुए तो उनके वालिद और वालिदा दोनों इंतकाल कर गए। उनके वालिद ने विरासत में एक बाग और 5 चक्की छोड़ी। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा साहब इसी बाग से गुजर बसर किया करते। एक दिन आप अपने बाग में मसरूफ थे तो वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम गंदोजी था। जब ये बुजुर्ग आपके बाग में आए तो आपने उनकी बहुत ताज़ीम और खिदमत की। ख्वाजा साहब की इस मेहमान नवाजी से खुश होते हुए उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा ख्वाजा साहब को दिया और व्यूअर्स, ये टुकड़ा खाने के बाद उनका दिल दुनियावी मामलात से दीनी मामलात की तरफ बदल गया, जिसके बाद आप सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हो गए, जिनके साथ आपने तकरीबन 20 साल तक दुनिया के बेशतर ममालिक का सफ़र किया। मौरख लिखते हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो उन्हें ख्वाब में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिंदुस्तान में अपना नुमाइंदा या इल्ची बन जाने का हुक्म दिया। चुनाचे 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में उन्होंने जनूबी एशिया का रुख किया और यहाँ आके सबसे पहले लाहौर में हज़रत अली हजवेरी या दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दी, जिसके बाद वो अजमेर की तरफ रवाना हुए। अजमेर के इलाके में आने के बाद उन्होंने यहाँ 2 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी सैयद वजीउद्दीन की बेटी उम्मतुल्लाह थी, जबकि आपकी दूसरी बीवी असमतुल्लाह एक मकामी हिंदू राजा की बेटी थी। इन 2 बीवियों से आपके 3 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। आपके बेटों में ख्वाजा फ़खरुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन और ख्वाजा ज़ियाउद्दीन शामिल हैं, जबकि आपकी बेटी बीबी जमाल थी। व्यूअर्स, मौरख लिखते हैं कि ख्वाजा साहब का मकामी आबादी के साथ ऐसा रवैया था कि कमो बेश 90 लाख इंसान आपके हाथ पे इस्लाम लाए। यहाँ तक कि एक अंग्रेज गवर्नर जो कि ब्रिटिश राज में भारत में तैनात था, उसने लिखा कि हिंदुस्तान में बज़ाहिर तौर पे तो हुकूमत हमारी थी, लेकिन यहाँ असल हुकूमत एक कब्र की है। व्यूअर्स, इस कब्र से मुराद ख्वाजा साहब का मज़ार था, जहाँ हर वक्त हर मजहब के लोग मौजूद होते हैं। आपका विसाल सन 1236 में मौजूदा भारत में अजमेर के इलाके में हुआ, जहाँ आज भी उनका मज़ार मौजूद है। व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि शेख अब्दुल कादिर जेलानी ख्वाजा साहब के मामू